Hello and warm welcome to all of you. Again, we are going to discuss the part third of JKPSC Assistant Professor Geography paper, which was held in 2023. So, the question number 81 was choose the correct option. There were two statements. One was Mukaddima book was written by Ibn Battuta. Second was Mukaddima began with the discussion of man's physical environment and its influence on the living style of the people. So, if we see that first option was Mukaddima book was written by Ibn Battuta, that is the wrong option. As you know that Mukaddima book has been written by Ibn Khaldun, while as Ibn Battuta has written a book known as Rihala. Second option is absolutely correct that Mukaddima begins with discussion of man's physical environment and its influence on the lifestyle of people. So its correct option is option A. A is false and B is true. Another question was who gave the concept of primate city. प्राइमेट सिटी का कंसेप्ट किसने दिया था? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी. द कंसेप्ट वाज गिवन बाय मार्क जेफरसन. सो प्राइमेट सिटी कंसेप्ट इसने 1939 में दिया है. प्राइमेट सिटी अगर हम देखेंगे इट इज़ अ सिटी दैट इज़ डिसप्रपोर्शनली लार्जर दैन एनी अदर सिटी इन द कंट्री. कार्ल ओसवार ने कंसेप्ट दिया है कल्चरल लैंडस्केप का, वाइल एज एलन चर्चिल सैम्पल. She is famous for environmental determinism and she has written a famous book Influences of the Geographic Environment. ईसा बोमैन ने pioneer fringe का concept दिया है. Question number 83 was correct about Borgat Pass. So इसका जो correct option है that is option B, that this pass joins Mumbai and Pune. This pass is located in Western Ghats. 84 question was about the Bharat Aluminium Company plant is set up in. ये कहाँ पे है भारत अल्मोनियम प्लांट? इट इज़ इन कोरबा छत्तीसगढ़. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए. Then question number 85 was Jamshedpur city is situated in which river. Jamshedpur city किस river पे है? So इसका जो correct answer है that is Jamshedpur city is situated in Sabarnarekha river, which is in Jharkhand. So इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन सी. और अगर आप देखेंगे ब्राह्मणी पे रोकीला है, टालचर सिटी है उड़ीसा में, और महानदी रिवर पे फेमस सिटी ऑफ कटक है या संबलपुर सिटी इस पे लोकेटेड है. दामोदर रिवर पे दुर्गापुर सिटी या बोकारो सिटी, टू फेमस सिटीज़ इस पे लोकेटेड है. सो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी. 86 question was if mean and mode of same data are 4 and 13 respectively, its median will be. हमें मीडियन कैलकुलेट करना था. सो इसके लिए हमें फार्मूला एक है मोड इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन. सो जब हम इस फार्मूला से इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ 7. Question number 87 was if mean of the frequency distribution is 100 and coefficient of variation is 0.25, then what is the value of variance? यहाँ पे हमें variance calculate करनी थी. variance हम calculate करते हैं. variance क्या होती है? variance is the square of standard deviation. So जब हम स्टैंडर्ड डिविएशन को स्क्वायर करेंगे उसको हम वेरिएंस कहते हैं. इसका मतलब ये था पहले हमें स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करनी थी, उसके बाद आराम से हम वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन ए 625 इसका करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 88 वाज विच करो हैविंग ए हायर पीक देन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इट इज़ दिस करो इज नोन एज लेप्टोकर्टिक करो. तो इसमें जो प्लेटोकर्टिक करो है, प्लेटोकर्टिक करो में ब्रॉड पीक होता है, मीज़ो कर्टिकरो में मीडियम पीक होता है, मॉडरेट पीक होता है. और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है
हमें बताना था हायर पीक वो लिप्टोकोर्टिकरो में होता है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Then question number 89, the point which vertically below to the observation point in celestial sphere is called. इसका correct option है that point is known as नादिर. अगर above observation point होता तो इस observation position होती तो उस point को हम ज़नीथ कहते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने दिया है below observation position तो इस point को हम नादिर कहते हैं. सो इस question का correct answer है option number B, that is नादिर. Then question number 90 was LIDAR in remote sensing stands for. बिल्कुल simple सा question है. LIDAR stands for light detection and ranging. So option C is the correct answer. Option number 91 is LIS is an example of. LIS क्या है? LIS का पूरा फॉर्म होता है Linear Imaging and Self Scanning Sensor. So ये अगर हम देखेंगे ये रिमोट सेंसिंग में सेंसर यूज़ किया जाता है. इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी बोथ. लिस एक्टिव सेंसर भी है और पैसिव सेंसर भी है. एक्टिव सेंसर उस सेंसर को हम कहते हैं जो खुद अपनी लाइट एनर्जी यूज़ करता है, while as passive sensor uses the energy of sun. Question number 92, match the following and choose the correct option. ये क्वेश्चन इसने सैम्पलिंग से लिया है. इसमें सैम्पल प्लानर्स दिए और इसके करेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं. हमें इसको मैच करना था. इसमें सिंपल रैंडम, सिस्टमेटिक रैंडम, स्ट्रेटिफाइड रैंडम और क्लस्टर रैंडम दिया है और इनके करेक्टरिस्टिक्स इसने नीचे दिए हैं. सो अगर हम इसका देखेंगे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग होती है जहाँ पे एवरी एलिमेंट हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड. इसमें हम रैंडम टेबल यूज़ करते हैं. जब हम सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग की बात करेंगे तो सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग में हम इक्वल इंटरवल्स पे सैंपल लेते हैं. और जब हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की बात करते हैं, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग होती है जो हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास हेटेरोजेनस डेटा होता है. उसको हम पहले स्ट्रेटा में डिवाइड करते हैं और फिर हम ईच स्ट्रेटा में एक सैम्पल्स कलेक्ट करते हैं. और लास्ट में क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग जहाँ पे हम पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ़ लेवल्स में और इन लेवल्स से हम सैंपल उठाते हैं. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आप देखोगे इसमें करेक्ट ऑप्शन है 1 2 3 4, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इसका सी आएगा. Then 94 question was about the scale. Temperature in 0 degree Celsius is under which scale of measurement? So you know that there are 4 types of scales: nominal scale, ordinal scale, interval scale and ratio scale. Nominal scale lowest level की scale होती है और ratio scale highest level की scale होती है. तो इसका जो जब हम टेम्परेचर मेजर करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस में इसको हम इंटरवल स्केल कहते हैं. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी. देन क्वेश्चन नंबर 95, फाइंड द करेक्ट आंसर. pH 7 indicates neutrality, pH below 7 indicates acidity, pH above 7 indicates alkalinity. सो यहाँ पे हमें देखना था इन 3 स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. सो इफ़ वी सी दैट इन pH स्केल अगर pH 7 हो उसको हम न्यूट्रलिटी कहते हैं. pH अगर 7 से कम होता है इसको एसिडिक स्केल कहते हैं. और pH अगर 7 से ज़्यादा हो अप टू 14 इसको हम एल्कलाइन और बेसिक सॉल्यूशन कहते हैं, बेसिक स्केल कहते हैं. सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट दीज ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर. देन 96 क्वेश्चन इसने दिया था क्लाउड्स के बारे में. लो क्लाउड्स इंक्लूड. लो क्लाउड्स हमें बताने थे. इसमें इसने दिया था स्ट्रेटस क्लाउड्स, अल्ट्रो स्ट्रेटस क्लाउड्स, निम्बोस्ट्रेटस एंड स्ट्रेटोक्यूमुलस. हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना था इनमें से कौन कौन क्लाउड्स लो आल्टीट्यूड पे होते हैं. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी 1 3 एंड 4. क्लाउड्स अगर हम देखेंगे जो अल्टो स्ट्रेटस क्लाउड्स है ये मिड आल्टीट्यूड में पाए जाते हैं. सो ये हम एलिमिनेशन ऑप्शन से भी इजीली कर सकते थे. सो सिरस क्लाउड्स आपको पता है हाई क्लाउड्स
उनको कहते हैं, अल्टो को हम मिडल क्लाउड्स कहते हैं, और क्यूमुलस क्लाउड्स जो होते हैं वो लोअर क्लाउड्स होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 97, रॉचीज माउंटेन्स आर ऑफ। रॉचीज माउंटेन्स क्या है ये, इनका कौन सा करेक्टर, इनका करेक्टर जो होता है दैट इज दे आर ऑफ ग्लेशियल करेक्टर, ये ड्यू टू एक्शन ऑफ ग्लेशियर से बनते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 98, कंसेप्ट ऑफ क्लाइमेटिक यूनिफॉर्मिटिज्म वाज गिवन बाय। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, इट वाज गिवन बाय जेम्स हटन, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटिज्म भी कहते हैं। अगर बी वाला देखेंगे आप, डटन ने आइसोस्टेसी का कंसेप्ट दिया है, किंग ने दिया है पेडिप्लेनेशन साइकिल, और गिलबर्ट ने दिया है डायनामिक इक्विलिब्रियम। सो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए बनता है। क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैचड। लोकल विंडोज दिए है और इनका रीजन ये कहाँ पे ब्लो करती है। इसने 4 विंडोज दिए है, पेम्पिरो साउथ अमेरिका, यामो जापान, नॉरवेस्टर न्यूजीलैंड, ट्रेमेंटेन अर्जेंटीना। सो फर्स्ट 3 जो है दीज 3 आर करेक्ट, वाइल एज जो ये ट्रेमेंटेन विन है ये सेंट्रल यूरोप में ब्लो करती है, और ये गलत ऑप्शन है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट इज ऑप्शन सी, 1, 2 and 3 आर करेक्टली मैच्ड। देन क्वेश्चन नंबर 100, द प्रोसेस ऑफ एलिवेशन इन्वॉल्व्स। एलिवेशन प्रोसेस कहाँ पे होती है, एलिवेशन प्रोसेस सॉइल्स में होती है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, एलिवेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे जो सॉल्युबल सब्सटेंसेस हॉरिजन ए में होते हैं वो नीचे चले जाते हैं हॉरिजन बी में, उस डिपोजिशन को हम कहते हैं एलिवेशन। देन क्वेश्चन नंबर 101, पेडोसॉल्स आर फॉर्मड इन एरियाज ऑफ। पेडोसॉल्स कहाँ पे पाए जाते हैं, सो पेडोसॉल्स ड्राई क्लाइमेट में पाए जाते हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ड्राई क्लाइमेट। सो ये इसने लिया था मार्बूट ने एक सॉइल क्लासिफिकेशन दी थी 1935 में, यूएसए का था। इसने सॉइल्स को क्लासिफाई किया था जोनल, एजोनल और इंट्राजोनल सॉइल्स में। सो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 102, अल्टीप्लेनेशन सरफेसेस आर फॉर्मड बाय। अल्टीप्लेनेशन सरफेसेस कहाँ पे डेवलप होती है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, पेरीग्लेशियल प्रोसेसेस। एक्चुअली ये जो अल्टीप्लेनेशन है ये एक इरोजनल प्रोसेस है जो पेरीग्लेशियल रीजन्स में होती है, इसको क्रायोप्लेनेशन सरफेसेस भी कहते हैं। 103rd क्वेश्चन, एंगल बिटवीन जियोस्ट्रॉपिक विंड एंड द आइसोबार इज। पहले हम देखेंगे व्हाट इज जियोस्ट्रॉपिक विंड। जियोस्ट्रॉपिक विंड उस विंड को कहते हैं विच ब्लोज पैरेलल टू आइसोबार। सो इट इज़ क्वाइट ओबियस, जो विंड पैरेलल आइसोबार्स को चलती है उसका जो एंगल होगा दैट इज ऑलवेज 0 डिग्री। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। देन क्वेश्चन नंबर 104, ग्लिच फॉर्मेज परटेन्स टू विच स्टेज ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। ये इसने पैंक साइकिल से लिया है। पैंक ने जो लैंडफॉर्म डेवलपमेंट साइकिल दिया है ये इसी से लिया गया क्वेश्चन है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी, यूनिफॉर्म स्टेज। सो वैक्सिंग स्टेज को कहते हैं एक्सेलरेटेड रेट ऑफ डेवलपमेंट, वैनिंग स्टेज को कहते हैं स्टेज ऑफ रिड्यूस्ड रेट ऑफ इरोजन या रिड्यूस्ड रेट ऑफ डेवलपमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, यूनिफॉर्म स्टेज। क्वेश्चन नंबर 105, हिक्कीसोथर्म्स आर फाउंड इन। हिक्कीसोथर्म्स कहाँ पे पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है टुंड्रा बायोम में हिक्कीसोथर्म्स पाए जाते हैं। दीज आर द प्लांट्स विच आर फाउंड इन टुंड्रा बायोम, those plants are known as hickysotherms. Question number 106, glacial control theory of origin of coral reefs was given by। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, आर ए डेली। डार्विन ने दी थी सबसिडेंस थ्योरी ऑफ कोरल रीफ्स फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 107, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर लोकली कॉल्ड बेग्यू इन।
सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी फिलीपाइनस। फिलीपाइनस में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को बैग्यो कहा जाता है। वेल जापान में इनको टाइफू कहा जाता है, चाइना में इनको टाइफून्स कहा जाता है और ऑस्ट्रेलिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को विली वाइलस कहा जाता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी फिलीपाइनस। क्वेश्चन नंबर 108, इंडियन नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 एम्स टू अचीव पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन बाय। जो इंडियन नेशनल पॉपुलेशन 2000 आई थी उसमें 3 ऑब्जेक्टिव्स थे, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। जो उसका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव था दैट वाज अबाउट टू अचीव पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन इन इंडिया, और उसका जो डेट ऑफ ईयर है, डेट ऑफ एकम्प्लिशमेंट ईयर है दैट इज 2045। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 109 इज वांथूनियन एग्रीकल्चरल जोन्स। यहाँ पे दिए हुए हैं वांथूनियन ने 7 एग्रीकल्चरल जोन्स दिए हैं स्टार्टिंग फ्रॉम सेंट्रल सिटी। हमें इनको अरेंज करना था करेक्ट सीक्वेंस में फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी। सो इस यू नो दैट जो फर्स्ट जोन है दैट इज सेंट्रल सिटी, उसके बाद सेकंड जोन मार्केट गार्डनिंग एंड मिल्क प्रोडक्शन आएगा, थर्ड आएगा फायरवुड एंड लंबर प्रोडक्शन, फोर्थ ऑप्शन पे आएगा आपका क्रॉप फार्मिंग विदाउट फैलो, फिफ्थ पे आएगा क्रॉप फार्मिंग फैलो एंड पास्चर्स, सिक्स्थ पे आएगा 3 फील्ड सिस्टम और सेवन्थ पे आएगा लाइव स्टॉक फार्मिंग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। Then 110th question was in 1981 census of India defined urban areas as places. 1981 सेंसस में अर्बन एरिया की डेफिनेशन दी गई है। यहाँ पे इसने 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं, हमें बताना था इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है ए मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ 5000, बिल्कुल सही है ये। सेकंड है एट लीस्ट 75% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। यहाँ पे इसने ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसने कहा 75% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन, ये गलत है। यहाँ पे इस जो उन्होंने सेंसस में कहा है, उन्होंने कहा है 75% ऑफ द मेल वर्किंग पॉपुलेशन। सो इस हिसाब से ये गलत स्टेटमेंट है। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है ए पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एट लीस्ट 500 पर्सनस पर स्क्वायर किलोमीटर। ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि उस में डेफिनेशन में ये है 400 पर्सनस पर स्क्वायर किलोमीटर। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ओनली ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। देन पासिस पे क्वेश्चन आया था, पासिस लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में इनमें से कौन सा पास है? नीति पास अगर आप देखोगे ये उत्तराखंड में है, बारालाचाला पास हिमाचल प्रदेश में है, ये ठीक है। जोजिला पास जम्मू एंड कश्मीर में है, ये कनेक्ट करता है JNK और लद्दाख को। ससिरला ये भी लद्दाख में है और शिपकीला पास हिमाचल प्रदेश में। तो इसमें जो करेक्ट passes about हिमाचल प्रदेश आर ऑप्शन सेकंड और 5। सो इसका करेक्ट आंसर है सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। India's neighboring countries arranged in descending order of shared border length। so इंडिया जो है ये 7 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करती है। इनमें से चाइना है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है, अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश और पाकिस्तान है। बांग्लादेश फर्स्ट नंबर पे है, चाइना सेकंड, बांग्लादेश फर्स्ट नंबर पे है, उसके बाद चाइना और उसके बाद पाकिस्तान को और बांग्लादेश को इसने ऑप्शन में नहीं लिया है। सो हमें इसका डिसेंडिंग ऑर्डर करना था, डिक्रीजिंग ऑर्डर करना था। सो फर्स्ट पे आएगा चाइना, देन यू हैव नेपाल, थर्ड पे आएगा म्यांमार, देन भूटान एंड देन अफ़गानिस्तान। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सीधे 1 2 3 4 5। शॉर्टेस्ट बाउंड्री इंडिया की है अफ़गानिस्तान के साथ और लॉन्गेस्ट है बांग्लादेश के साथ, लेकिन बांग्लादेश ऑप्शन में नहीं है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन ए।
अरेंज द हिमालयन पीक्स हाईएस्ट टू लोवेस्ट। हिमालयन पीक्स दिए हुए हैं, इनको हमें हाईएस्ट से लोवेस्ट की ओर अरेंज करना है इन टर्म्स ऑफ अल्टीट्यूड या इन टर्म्स ऑफ हाइट हम कह सकते हैं। सो यहाँ पे इसने दिया है कंचनजंगा, मकुला, धौलागिरी, नंदा देवी, अन्नपूर्णा। सो जो सबसे इनमें से सबसे ज़्यादा हाइट कंचनजंगा की है, उसके बाद सेकंड नंबर पे पीक है दैट इज़ मकालू, थर्ड नंबर पे है धौलागिरी, फोर्थ पे है अन्नपूर्णा और फिफ्थ पे है नंदा देवी। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। सो ओवरऑल अगर हम देखेंगे कंचनजंगा इज़ द थर्ड लार्जेस्ट पीक ऑफ द हिमालयन रीजन्स और ऑफ द वर्ल्ड, और फर्स्ट नंबर पे है माउंट एवरेस्ट, सेकंड नंबर पे है K2। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। ग्लेशियर्स ऑफ द पीर पंचाल रेंज इंक्लूड। यहाँ पे इसने ग्लेशियर्स के नाम दिए, हमें बताना था पीर पंचाल रेंज में इनमें से कौन कौन सा ग्लेशियर है। चुंग पहाड़, सोना पानी, जैमू, गशर ब्रह्म। तो इनमें जो फर्स्ट टू ग्लेशियर्स है दैट इज़ चुंग पहाड़ और सोना पानी, ये पीर पंचाल रेंज में है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज़ ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। द टर्म ओंटोग्राफी इज़ एसोसिएटेड विथ। ओंटोग्राफी टर्म किसके साथ एसोसिएटेड है? सो इट इज़ एसोसिएटेड विद W.M. डेविस। ये विलियम मॉरिस डेविस ने ये टर्म दी है ओंटोग्राफी। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। ये ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा माजिद हुसैन की बुक से एवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिक थॉट। वहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन ऑफ डेविस है वही से ये ऑब्जेक्टिव लिया हुआ है। देन क्वेश्चन नंबर 116, द बुक क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन was written by। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन जो है ये बुक किसने लिखी है? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट ने बुक लिखी है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। इसके अलावा इमैनुअल कांट ने लिखी है जनरल नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ हैवीनेस। इमैनुअल कांट जो है ये फेमस है फॉर हिज gaseous hypothesis of Earth's formation। Immanuel Kant is also known as a father of exceptionalism। इमैनुअल कांत ने कहा था गिव मी मैटर एंड आई विल बिल्ड वर्ल्ड आउट ऑफ इट। सो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने फेमस बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था कॉस्मॉस। और बर्नहार्ड वेरिनियस इज़ अ फेमस फॉर द डिविलिज्म इन जियोग्राफी। इसने पहले जियोग्राफी में ब्रांचिंग की थी 17th सेंचुरी में। अल्फ्रेड हिटनर रीजनल जियोग्राफी के लिए मशहूर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 117, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉलोज अंडर द कैटेगरी ऑफ सेल्सियस ओजेस। सेल्सियस ओज इनमें से कौन सा है? सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी, डायटम ओज। टेरिडोपॉड ओज और ग्लोबजेरिना ओज जो है ये इनको हम कहते हैं कैल्शियस ओजेस। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 118, मैच द एंड प्रोडक्ट ऑफ द नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन विद द जियोमॉर्फोलॉजिस्ट। यहाँ पे यू नो दैट फर्स्ट जो दिया था, फर्स्ट एंड प्रोडक्ट डेविस ने दिया था, इसने कहा था पेनी प्लेन। उसके बाद डिफरेंट टर्म से इसको दिया गया है डिफरेंट जियोमॉर्फोलॉजिस्ट ने। यहाँ पे हमें बताना था कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। सो फर्स्ट वन इज एंड्रॉप पैंक ने दिया था, ये बिल्कुल सही है। पेन प्लेन दिया था क्रिकमैन ने, इसने दिया है किंग, सो ये गलत ऑप्शन है। पेडी प्लेन किंग ने दिया था, सो ये भी गलत है। इच प्लेन दिया था पाग एंड थॉमसन ने, सो ये भी गलत है। फैन लाउसन ने दिया, ये करेक्ट है। सो इसमें सिर्फ दो फर्स्ट और फिफ्थ वन करेक्ट है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 119, gently sloping depositional plane between pediments and playa is called। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी,
उस स्लोपिंग डिपोजिशनल प्लेन को हम बजाड़ा कहते हैं। बालसान्स अगर आप देखोगे, बालसान्स वो डिप्रेशन होती है जहाँ पे वाटर कलेक्ट होता है, या इसको हम एंडोरिक डिप्रेशन भी कहते हैं। हमारा जो होता है, हमारा रॉकी डेजर्ट को हम, या रॉकी डेजर्ट प्लेन एरियाज या प्लेटू एरियाज को हम कहते हैं हमारा। देन क्वेश्चन नंबर, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 119 का, दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज बजाड़ा। सो 120th क्वेश्चन, बुलेट ट्रेन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल विंड्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी, सरको। बुलेट ट्रेन इज एसोसिएटेड विथ सरको। जब सरको विंड चलती है सहारा डेजर्ट के ऊपर से, तो वो अपने साथ कुछ रेड सैंड्स लाती है और इन रेड सैंड्स को फिर बारिश के साथ गिराती है। दैट रेन इज नोन एज ब्लड रेन। सो correct option is option C. So this is all about the JK PSC Assistant Professor question paper which was held in 2023. We have discussed all the 120 questions in 3 sessions. I hope you have you better understood all these questions. इसमें मैंने only 120 questions नहीं बल्कि तकरीबन मैंने इसमें सारे ऑप्शंस को भी डिस्कस किया है। ओवरऑल ही तकरीबन 300 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं। आई होप कि आप इसको लाइक करेंगे और आगे इसको सब्सक्राइब करेंगे। होप सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस।